Dear student, now we are going to start remaining part of the chapter number 4, my bank account, my lecture 2. So let's start. As I told in my previous lecture, when the manager stood up and he said that person is opening an account, he wanted to deposit $56 in account, just open it. He said unkindly loud, Mr. Montgomery. Mr. Montgomery, I told you, is the name of the accountant. These type of thing they will ask you in MCQs. Dash was the name of the accountant. Mr. Montgomery is the name of the accountant. Dash was the name of the author, Stephen Leacock. My bank account is written by. This is a fictitious story or that kind of story, the humorous kind of story. So these kind of things they will ask you in MCQs. Writer salary increased, raised to dash dollar. Understand? So these kind of thing they will ask you in exam. Now let's start with the textbook. Just open page number 42. Now we are going to read. My face was terribly pale. Here I said, put it in my account. The sound of my voice seemed to mean, let us do this painful thing while we feel that we want to do it. Writer said, now this is very important point. Let us do this painful thing while we feel that we want to do it. Writer pressed in a ball, $56 pressed in a ball, and he went up to a place marked accountant. जैसे बैंक में लिखा होता है यहाँ कैश जमा करवा सकते हैं, यहाँ अकाउंटेंट बैठा होता है, जहाँ से एक जगह से हम बाहर से टोकन लेते हैं. तो राइटर बड़ा कंफ्यूज था. उसके हाथ में जैसे एक रुमाल जैसे होता है, हैंडकरचीफ होता है, उसमें $56 रखे हुए थे, बॉल की तरह बनाया हुआ था, और वो यूं करके जो है अकाउंटेंट की तरफ फॉरवर्ड करता है. नाउ ही वाज कंफ्यूज्ड कि उनके पैसे इधर उधर ना हो जाएं. अंडरस्टैंड? तो राइटर सेड माय फेस वाज टेरिबली पेल. मतलब जैसे इंसान जब कंफ्यूज होता है उसका चेहरा जो है पीला पड़ जाता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है. सो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द राइटर इन अ बैंक. सो उसके बाद देखें क्या हुआ. Here I said put it in my account. The sound of my voice seemed to me, let us do this painful thing while feel to do that. Now he took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a bit of paper and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank seemed to swim before my eyes. राइटर कहता है मैंने $56 दे दिए. वहाँ पे अकाउंटेंट जो था उसने रजिस्टर में मेरा नाम लिखा, पैसे लिखे, पैसे उसने ले लिए. बैंक मेरे सामने घूम रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था what I was doing. उसने कहा यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दें. आई वॉज वरीड अबाउट कहीं पैसे इधर उधर ना हो जाएं. उसकी पूरी सैलरी थी वो. तो राइटर बड़ा कंफ्यूज था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. दैट वॉज द बैंक फोबिया. जैसे इंसान डर जाता है बैंक में जब जाता है. नाउ सी इट इज इन द अकाउंट. आई आस्क्ड इन अ हॉलो शेकिंग वॉइस. इट इज सेड द अकाउंटेंट. इट इज इन द अकाउंट. नाउ सी वो कंफर्मेशन करने के लिए पूछता है अकाउंटेंट से, क्या मेरे अकाउंट में पैसे आ गए? इट इज इन माई अकाउंट. Now see what the accountant said. Accountant said, it is, yes, it is in your account. Now writer said that then I want to draw a check. Writer के ज़हन में एकदम ख्याल आ गया. पहले सारे पैसे जमा करवा दिए, $56 थे जो सारे जमा करवा दिए, $56. अब उनके ज़हन में ख्याल आया कि मुझे अब चेक पास करवाना है. Understand? I wanted to withdraw money for my present use. Writer wanted to withdraw $6 for its present use. एक्चुअली उसको ये करना चाहिए था $6 रख के 50 जमा करवा देते, बट उसका जहन काम नहीं कर रहा था. उसने पहले 56 ही जमा करवा दिए. अब उसने पूछा अकाउंट में पैसे आ गए. अकाउंटेंट सेड यस. नाउ राइटर सेड आई वांट टू विथड्रॉ चेक. आई वांटेड टू विथड्रॉ मनी. आई वांटेड टू विथड्रॉ $6 फ्रॉम माई अकाउंट फॉर द प्रेजेंट यूज. नाउ सी माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 out for the present use. Someone gave me a checkbook. Someone else began telling me how to write it out. The people in the bank seemed to think that I was a man who won millions of dollars. Now see, that is very interesting. Writer कहता है आसपास लोग बैठे होते हैं, मेरी मदद कर रहे होते हैं. कोई मुझे चेक पे जो है लिख के दे रहा है, कोई पेन पास कर रहा है, कोई कहता है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. राइटर कहता है कि लोग ये समझते हैं मैं एक अमीर आदमी हूँ, $1,000,000 मेरे पास है, $1,000,000 है, मैं आसपास लोग मेरी खुद ही हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं. और राइटर जो है बड़ा उस वक्त कंफ्यूज हो जाता है. नाउ सी बट वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल. आई रोट समथिंग ऑन अ चेक एंड पुश्ड इट टुवर्ड द क्लर्क. कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है. मैंने जल्दी से जो है चेक पे कुछ लिखा और आगे फॉरवर्ड कर दिया. नाउ आई टोल्ड यू क्लियरली
Writer wanted to withdraw $6 for its present use. अब उसने एक मिस्टेक कर दी, उसने जब चेक पे कुछ लिखा, he wrote $56 instead of $6. 6 की जगह 56 लिख देता है. That was the blunder. एक बड़ी मिस्टेक कर देता है राइटर. 6 की जगह 56 लिख देता है. इट मीन्स सारे के सारे पैसे निकलवाना चाह रहा है अभी के अभी, जो अभी के अभी अकाउंट में जमा करवाए. नाउ ये चीज राइटर को नहीं पता थी कि मैंने 56 लिख दिया है, बिकॉज जब इंसान कंफ्यूजन में होता है, परेशानी में होता है, ही डजंट नो व्हाट टू डू, उनके जहन में कुछ और चल रहा होता है, हाथ से कुछ और लिख रहा होता है. दैट इज अ बैंक फोबिया. सो राइटर के साथ भी ऐसा ही हुआ. उसने एक मिस्टेक तो कर ली. नाउ सी वो अपनी गलती को किस तरह जो है लोगों के सामने जो है उसको छुपाता है. दैट इज अनदर मिस्टेक. इंसान अपनी एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करता है. तो राइटर ने भी इसी तरह किया. इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सक्यूजेस, उसने जो है अपनी एक और गलती कर ली. नाउ सी, व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, ही आस्क्ड इन सरप्राइज. नाउ अकाउंटेंट हैरान हो जाता है, कहता है सारे पैसे अभी आप निकलवा रहे हैं अपने अकाउंट से. देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन $56 इंस्टेड ऑफ 6. अब राइटर कहता है मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने गलती कर दी है, 6 की जगह 56 लिख दिया है. देन आई वॉज टू अपसेट टू रीजन नाउ. देन आई वॉज टू अपसेट टू रीजन नाउ. अब देखें ये जो लाइन है ये एग्जाम में पूछते हैं. आई वॉज टू अपसेट टू रीजन नाउ. नेम ऑफ द स्पीकर. नाउ नेम ऑफ द स्पीकर इज स्टीफन ल्यूकॉक. आपसे पूछेंगे. तो ये जो बीच में लाइंस भी होती हैं, दी लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई वॉज टू अपसेट टू रीजन नाउ, इसकी मीनिंग ये होती है, राइटर कहता है अब मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या रीजन दूं, क्या बताऊं अकाउंटेंट को मुझसे कैसी गलती हो गई, क्यों मैंने लिखा. नाउ सी, आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. राइटर समझ जाता है, उनके जहन में एक फीलिंग आती है कि अब मैं समझा नहीं सकता कि मैंने क्या गलती की है. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन, कि जो गलती हो गई है मुझसे समझाना बहुत मुश्किल है. ऑल द क्लर्क हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी. राइटर की और परेशानी बढ़ाने के लिए सारे लोग आसपास बैठे होते हैं, सब लिखना छोड़कर उनकी तरफ देखना शुरू करते हैं. राइटर बिकम मोर कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज जब देखते हैं लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मैंने कोई गलती की है, अब मैं ऐसी कोई बात बोलूं ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि मैंने गलती की है, मैंने भाई जानबूझ के ऐसा किया है. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू समथिंग. अगर आप अभी जा रहे हैं, अचानक सीढ़ी से गिर जाते हैं, लोग आपको देख के हंसते हैं, आप यही बोलेंगे भाई मैं खुद ही ऐसे कर रहा था. अंडरस्टैंड. दैट इज लाइक अ मिस्टेक. आपसे मिस्टेक तो हुई है, बट आप उस मिस्टेक को छुपाने के लिए एक और मिस्टेक कर रहे हैं. नाउ सी, राइटर ने क्या कहा, बोल्ड एंड केयरलेस इन माई मिजरी आई मेड अ डिसीजन, yes the whole thing. You wish to draw your money out of the bank, every cent of it. Writer clear कर देता है, yes I want to withdraw $56 from my account, every cent of it. एक एक पैसा मैं अपने अकाउंट से निकलवाना चाहता हूँ जो मैंने अभी जमा करवाया. राइटर कहता है मैंने परेशानी में सब लोगों को देखते हुए एक डिसीजन ले लिया कि मैं अपने सारे पैसे अपने अकाउंट से निकलवाना चाहता हूँ. Understand? Now are you not going to put any more in the account, said the clerk astonished. वहाँ पे क्लर्क जो है ताजुब में कहता है कि आप अकाउंट में कुछ नहीं रखना चाहते, अकाउंट में कुछ नहीं जमा करवाना चाहते, अकाउंट आपका जो है खाली हो जाएगा. नाउ व्हाट राइटर सेड, नेवर. राइटर कहता है नहीं. जैसे लोगों को ऐसा फील होता है कि राइटर अपना एक डिसीजन ले रहा है. एक्चुअली इट वाज नॉट अ डिसीजन, उससे गलती हो गई थी, उस गलती को छुपा रहा था. अंडरस्टैंड. नाउ सी, अ फुलिश होप केम टू मी दैट दे माइट थिंक समवन हैड इंसल्टेड मी. While I was writing the check that I had changed my mind. I made a miserable attempt to look like a man with a fearfully quick temper. Quick temper मतलब इंसान जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो बाद में उसे पछताना पड़ता है. A writer did that same thing. राइटर ने वही चीज़ की. उसने कहा कि मैंने कन्फ्यूजन में, मैंने परेशानी में, बैंक फोबिया की वजह से चेक पे जो है 6 की जगह 56 लिख दिया, यही मुझसे गलती हो गई. और उसने इस गलती को छुपाने के लिए यही लोगों को उसने कहा किस तरह फेस करना पड़ेगा. उसने कहा कि आई वांटेड टू विथड्रॉ $56 फ्रॉम माई अकाउंट. एक एक पैसा अपने अकाउंट से मैं निकलवाना चाहता हूँ. नाउ सी, हाउ विल यू हैव इट? अनदर क्वेश्चन that created a worry in the mind of a writer. How will you have it? Actually, it's a question they will ask you in an exam might be. How will you have it mean?
in which denomination you want to draw out your money. For example, if you have 1,000 rupees, when you want to withdraw 1,000 rupees from your bank account, if manager is asking from you, how will you have it? Means in which denomination you want to draw out your money, either 2 500 rupees notes or 10 100 rupees notes or 20 50 rupees notes. Understand? So they will ask you first. But writer didn't understand that what is mean by how will you have it. So writer without thinking said that, I understood his meaning, I answered without even trying to think $50 notes. Writer say $50 notes में मुझे चाहिए. Now she actually wanted to withdraw $56, but उसके ज़हन में अभी भी पहले उसने क्या गलती, उसने कहा $56 notes में चाहिए. Now he gave me $56 note. He gave me $50, sorry. उन्होंने ये कहा कि $50 नोट्स में चाहिए, तो $50 का नोट दिया. नाउ सी अगेन एंड द $6 पूछता है और जो $6 है उनका क्या करना है, नोट्स. आई सेड ही गेव मी $6 एंड आई रश्ड आउट. पहले $50 का नोट दिया, उसने कहा $6 भी नोट्स में चाहिए. जब राइटर को पैसे मिल गए, राइटर सेड देन आई रश्ड आउट. नाउ सी एवरीबडी वाज थिंकिंग एंड लुकिंग एट द राइटर. सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे. जो मैन फोकस था लोगों का वो राइटर थे, स्टीफन लीकॉक थे. जब वो $56 ले रहे थे, एंड में उसने एक और फनी चीज़ की. वो उसने क्या किया, नाउ सी आई हर्ड द साउंड ऑफ अ रोर ऑफ अ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द रूफ ऑफ अ बैंक. सिंस देन आई यूज द बैंक नो मोर. आई कीप माई मनी इन माई पॉकेट एंड माई सेविंग इन अ सिल्वर डॉलर इन अ सॉक. नाउ सी ही कीप हिज मनी $50. $50 इज अ सेविंग इन अ सिल्वर सॉक्स. लाइक उसने, जैसे इंसान होता है ना, जैसे उसके पास फॉर एग्जांपल अगर 1000 का नोट है, 100 का नोट है, 100 का नोट जो है जेब में रख लेते हैं, 1000 का अपने सॉक्स के अंदर या बूट के अंदर छुपा लेते हैं, कोई रॉबरी कोई चोरी ना हो जाए. तो राइटर भी बैंक से निकलने से पहले उसने क्या किया, $50 थी जो उसकी इंक्रीमेंट थी सैलरी में, जो सैलरी बढ़ी थी, उसने अपने सॉक्स में छुपाए. और जो $6 थे वो जो प्रेजेंट यूज़ के लिए उसने निकलवाए थे वो अपने जेब में रखे. अब इसको देख के सारे लोग और हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जैसे ही गेट बैंक का खुला, ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है. दैट वेंट अप टू द रूफ ऑफ अ बैंक. राइटर कहता है उस दिन के बाद मैंने बैंक में जाना छोड़ दिया और उसका जो बैंक फोबिया था वो बैंक फोबिया ही रह गया, बिकॉज उसका डर नहीं निकला. उसने जो चीज़ें उनके साथ हुई. नाउ सी दैट इज़ द फिक्टिशियस स्टोरी. एक्चुअली स्टीफन लीकॉक वाज अ एजुकेटेड मैन, और पढ़ा लिखा आदमी था, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था और ह्यूमरिस्ट एंड फेमस एसेस्ट एंड कैनेडियन राइटर. सो ये उन्होंने एक स्टोरी लिखी है. ही वांटेड टू टेल यू समथिंग. इस स्टोरी के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहता है. वो ये समझाना चाहता है कि कभी कभार हम क्या करते हैं, कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे राइटर ने चेक पे गलती से कुछ लिख दिया. अब उस मिस्टेक को हमें एक्सक्यूज़ करना चाहिए, करेक्शन करनी चाहिए. अगर हम उसको छुपाएंगे और उस मिस्टेक और उसके लिए कुछ और गलत सलत बोलेंगे और मिस्टेक को बढ़ा देंगे. ठीक है, मिस्टेक को हम ख़त्म नहीं करेंगे. जैसे राइटर ने चेक पे 6 लिखा, 6 की जगह 56 लिख दिया. अब ये मिस्टेक हो गई, उनको करेक्शन करवानी चाहिए थी, उसको एक्सक्यूज़ देना चाहिए था, समझाना चाहिए था. बट राइटर वॉज वरीड अबाउट इट, उसको नहीं समझा पाए. और बहुत सारी चीज़ें इसमें न्यू कमर्स के लिए बैंक में एक ऑब्जर्वेशन है. जैसे न्यू कमर्स कोई जाता है तो उसको इतना लोग नहीं समझाते, कोई गाइड नहीं करता, और इसलिए हम ये कहते हैं कि जो न्यू कमर्स को कोई गाइड नहीं कर पाता, और जो पैसे वाले लोग होते हैं उसको मैनेजर पर्सनल रूम में सारी चीज़ें गाइड करते हैं. ये भी कभी कभार बैंक में ऐसा होता है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन समटाइम. तो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज. सो दैट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द चैप्टर माय बैंक अकाउंट. नाउ इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर अनदर चैप्टर, द वॉल्स ऑफ सर्नो ग्रेड्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you.